So from an accidental engineer, were you an accidental doctor? Prelims, I cleared prelims. For me, it was like I cleared this exam because finally. So it's like choosing the life life partner. Choosing life partner So is it's very easier. difficult because it can make or break your life. चॉपर में एयरलिफ्ट करके लेके आएगा जो भारत दर्शन का टाइम में ख़राब हुआ, लेकिन वो जो ज़िंदगी में पहली बार और पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब हेलीकॉप्टर राइड मिलेगा। इनके भारत दर्शन इनको गोवा ले जाया गया था। तो मैम प्लीज, गोवा में आपने क्या सीखा? I am extremely in awe of them. I have to say this on record. आशीष इनफैक्ट मैं बताना चाहूँ, ही वॉज माई रूममेट ऑल्सो ड्यूरिंग दैट फेज 1 लबासना। तो अगर कुछ झूठ बोलेगा तो मैं पकड़ सकता हूँ इसको यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर के द्वारा आयोजित पर्सपेक्टिव सीरीज के एक और एपिसोड में। हमारे पैनल में सबसे पहले मेरे राइट पे हैं अश्वती मैम, जो कि केरला से ही हैं और केरला में ही पोस्टेड हैं। उसके बाद हमारे पैनल में हैं फैज़ान अहमद सर, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और फिलहाल इनकी पोस्टिंग तेलंगाना में है। मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हैं वी हैव अविनाश राव सर, जो कि IFS में सिलेक्ट हुए हैं और फिलहाल अपनी ट्रेनिंग को अंडरगो कर रहे हैं न्यू दिल्ली में। और लास्टली हमारे पैनल में हैं आशीष कुमार मिश्रा जी, और इनकी पोस्टिंग है फिलहाल उत्तराखंड में। और फाइनली हमारे साथ हैं फियोना जी, जो कि अनअकैडमी टीम से ही हैं। तो वैसे तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, इनसे इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही में इनके प्रिपरेशन के चैलेंजेस के बारे में बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन ऑफिसर्स के बैकग्राउंड से। ये कहाँ से आते हैं, क्या ऐसा हुआ कि इनको UPSC एग्ज़ाम की तैयारी करने का मन बना, एंड इनके बाकी जो भी बैकग्राउंड्स हैं उसके बारे में चर्चा आज करते हैं। सबसे पहले अश्वती मैम आप। So hello everyone. As rightly introduced, my name is Ashwati. I was born and brought up in Kerala, and I cracked CSE 2019. And Kerala is my home state, and I got Kerala Cadre allocated very fortunately. I did my district training in Palakkad, and now currently I'm posted as subdivisional magistrate in Trivandrum. Wow. So South के I think from Ashwati we should also come back to South. Avinash. Avinash, a little bit about you. Hello everyone, my name is Avinash. I am from Karnataka in a district called Davangere. My graduation is in law. I did my BA LLB honours from National Law School, Bangalore. And I cleared the 2022 UPSC exam. I'm in the Indian Foreign Service. December we finished our foundation course in Labasna, and currently I'm undergoing my training in Delhi. That's about me. Faizan aap. So yes, thank you and hello everyone. I basically belong to Kota, Rajasthan, and I've completed my BTech in Mechanical Engineering in 2018 from Rajasthan University. Post that I started preparing for UPSC examination, and 2020 exam I cleared. So currently I'm posted in Siddipet district of Telangana as Assistant Collector. Great. Ashish, finally So aap. hello everyone, I'm Ashish and I originally belong from Bihar. Native place is Chapra in Bihar, but currently I'm residing in Purnia. So I managed to clear UPSC 2020 examination, and I got allotted to Uttarakhand cadre. Currently I'm undergoing my district training in Haridwar district, and I'm posted as SDM in Haridwar. Great. तो I think थोड़ा बहुत तो हमने आप सबको जान लिया। तो सर पहला क्वेश्चन। सिंस आप लोग अभी अभी अपनी सर्विसेज को आपने ज्वाइन किया है, इनफैक्ट आप में से मैक्सिमम ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कि अभी अभी अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी चर्चा लबासना पे करते हैं। अपने लबासना के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, ट्रेनिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे आपको ग्रूम करती है IAS ऑफिसर्स बनाने के लिए, इतनी टफ जॉब है। तो प्लीज़ मैम पहले आप। Okay, so I finished my 2 years of training, of which phase 1 of the training and phase 2 and foundation course were done in the academy. So the training in the academy is largely about real life experiences that they bring forth for you through village visits, Himalayan treks, winter study tour, which is also known as Bharat Darshan, then sending you to the districts to have a real life experience of how your cadre is going to be. So that forms the major part of the training, and then the secondary aspect is classes that we have there, the classroom classes. So because of COVID, largely my batch had to sit for online classes, but even though it was online, the classes also were very different in a sense. You get to learn a language which was not your language. For example, I chose to learn Telugu.
because I watch a lot of Telugu movies, we had a choice of learning any language we wanted to. So I chose Telugu. I chose sign language. Then we also had, extracurricular sessions. So I attended photography classes. So they just expose you to a lot of backgrounds, a lot of extracurricular activities also. So it's not just, like it's academic at its core, but it explores into a lot of other options also, which really reflects in your personality after 2 years of training. ग्रेट. तो फैज़ान, आपने भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स या हॉबीज़ को पिक किया था वाइल एट अकेडमी? मैम के साथ मैं एग्री करूँगा. जैसे मैम ने बोला दैट ओवरऑल दे वांट टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी बिकॉज अल्टीमेटली वी विल बी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल. तो देश को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो यू आर नॉट ओनली रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री बट द पीपल जो उसके साथ आते हैं, ऑलमोस्ट 130-140 मिलियन पीपल. तो उसके हिसाब से लबासना का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया होता है. जैसे मैम ने बताया फोटोग्राफी, एंड फॉर्चुनेटली मैम बिलोंग्स टू होम कैडर, तो एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने नहीं पड़ता. सो जैसे मेरा तेलंगाना कैडर है, सो आई एम लर्निंग तेलुगु. बेस आई बिलोंग टू राजस्थान. तो जिसको जो कैडर मिलता है दिस इज़ फॉर IAS ओनली, तो उनको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है. लाइक आशीष इज़ फ्रॉम बिहार बट इन उत्तराखंड, तो हिंदी स्पीकिंग है, तो हिंदी जो एक काम काज वाली हिंदी रहती है वो उनको सीखना होता है. लेकिन जो 3 महीने की कॉमन जो फाउंडेशनल कोर्स होता है स्टार्टिंग में, वो सब सर्विस के लिए कॉमन होता है. एंड दैट इज़ आई थिंक सबसे ज़्यादा फन और इंटरेस्टिंग पार्ट, जब आपको अलग अलग सर्विस के लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो शायद फिर आप कभी नहीं मिल पाएंगे. लाइक फॉरेन सर्विस हो गया, रेवेन्यू सर्विस हो गया, तो और अलग अलग पार्ट से. तो एक अच्छी चीज़ जो लबासना में की जाती है, जो मेरे को वहीं जाके पता चली, हॉस्टल्स में फाउंडेशन में ऑलवेज शेयरिंग रूम होता है, और आपको कभी भी जो रूम पार्टनर होगा वो सेम सर्विस का नहीं मिलेगा एंड सेम स्टेट का नहीं मिलेगा. सो फॉर एग्जांपल फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली, मेरा फाउंडेशन कोर्स में जो रूममेट थे वो आंध्रा से थे. सो थोड़ा तेलुगु मैंने वहाँ से भी सीख लिया, एंड उनका सर्विस भी डिफरेंट था मेरे से. तो मेरे को मैं कभी कोई इससे पहले ज़्यादा किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं था जो तेलुगु स्पीकिंग पर्सन हो. सो आई केम टू नो अ लॉट अबाउट देयर कल्चर, कैसे रहते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं. काफ़ी मेरा एक जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हुआ चीज़ों को लेके. सिमिलरली और दूसरे नॉर्थ ईस्ट से फ्रेंड्स थे, कश्मीर से थे, राजस्थान से थे. तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो पर्सनालिटी होती है इस तरह की डेवलप हो जाती है कि जब आप 3 महीने के फाउंडेशन कोर्स के बाद, या फिर IAS की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 10 मंथ्स की होती है लबासना में, उसके बाद जब आप निकलते हैं तो ओवरऑल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ पर्सन हु हैड एंटर्ड लबासना एंड जिसने लबासना छोड़ा. एंड आई थिंक अविनाश एंड आशीष भी मेरे साथ इस बात से एग्री करेंगे. आशीष इनफैक्ट मैं बताना चाहूँ, ही वॉज माई रूममेट ऑल्सो ड्यूरिंग दैट फेज़ 1 लबासना. तो अगर कुछ झूठ बोलेगा तो मैं पकड़ सकता हूँ इसको यहाँ पे. चलिए, तो आशीष आई थिंक अब आप बोलिए और आप झूठ पकड़ना. यस. सो लाइक फैज़ान सेड कि एक छोटे से इन्वायरमेंट में, एक छोटी सी कैंपस में आपको हर स्टेट से जो ऑफिसर ट्रेनीज आते हैं, फिर यू गेट टू नो देयर पर्सपेक्टिव कि उनके स्टेट में कैसा होता है, उनके कल्चर में कैसा होता है. तो फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव लाइक फैज़ान सेड, सो आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार. एंड हमारे यहाँ मतलब कि कल्चर जो है, लाइक किड्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स एकेडमिक्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एंड ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, बैडमिंटन एंड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, उसको मतलब कि उतना इनकरेज नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली. सो वंस इन अकेडमी आई मेड इट अ पॉइंट दैट आई विल डू एवरीथिंग. लाइक कि आज तक कुछ किया नहीं है, नॉट इन स्पोर्ट्स, नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीवन, ट्रैकिंग एंड ऑल, कुछ किया नहीं था. तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं आई विल एक्सप्लोर एवरीथिंग. तो आई वेंट इन टू स्पोर्ट्स, हर कुछ सीखा मैंने. एंड देयर आर सर्टिफाइड कोच, लाइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो है टेनिस सिखाने के लिए अलग कोच हैं, स्क्वॉश के लिए अलग कोच हैं, बैडमिंटन के लिए अलग कोच हैं. तो डैट ऑल्सो एड्स टू योर पर्सनैलिटी, बिकॉज पर्सनैलिटी इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. द मोर एक्सपोजर यू गेट, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट देश भारत दर्शन, जिसमें आप जो है अलग अलग स्टेट्स में जाते हो, एंड दैट टू इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल, एंड नॉट ऑल पीपल आर फ्रॉम द सेम स्टेट. सो for instance, if someone is in my group and she or he is from Kerala, and if I am visiting Kerala, then she will be our local guide, and then that way we get more exposure to the culture of Kerala and places to explore in Kerala. So उस टाइप से लर्निंग जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है. तो मोर और लेस आई टोटली एग्री विद फैज़ान कि वंस अ ऑफिसर ट्रेनिंग एंटर्स इनटू द एकेडमी, तो ही इज़ basically coming from a preparation of 3 or 4 years, जिसमें he has to set out the external world, and then अचानक से जो उसको इतना एक्सपोजर मिलता है, तो डेफिनेटली ऑन टॉप ऑफ दैट जो UPSC के तैयारी के दौरान जो एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, तो कंबाइन विद A+B, तो उसका जो पर्सनैलिटी है, दिस स्टार्क डिफरेंस आई वुड से.
दोस्तों, क्या आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है? बस आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा। यदि आप अपनी यूपीएससी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो पाथफाइंडर का जो आखिरी बैच है वो आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो कि 1 सितंबर से शुरू होने वाला है। इसके बाद कोई भी नया बैच शुरू नहीं होगा और इसमें जो आखिरी एनरोलमेंट है वो केवल 31 अगस्त तक ही ली जाएंगी। इस बैच के बारे में आपको ब्रीफली बता दूं, इसमें आपको जीएस की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की संपूर्ण तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाई जाएगी, जिसके माध्यम से आपकी यूपीएससी की संपूर्ण जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो पाएगी। साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी और आप चाहते हैं तो इसमें ऑप्शनल्स भी आप साथ में कंबाइन करके इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अब एक नया पाथफाइंडर पास भी हम लोग लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से जो पाथफाइंडर की जितनी भी ऑफरिंग्स हैं उन सभी ऑफरिंग्स में आप जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं बाय ओनली बाइंग द सिंगल पाथफाइंडर पास, जिसमें कि आपको 2 साल तक उस पास की वैलिडिटी देखने को मिलेगी और उसमें आपको जीएस का बैच, ऑप्शनल का बैच और भले जो भी नई नई इनिशिएटिव्स हैं जैसे एथिक्स का डेडिकेटेड बैच हो गया, माइंड मैप्स का बैच हो गया, ये सभी जो नई नई ऑफरिंग्स हैं ये भी आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ में एनरोल करना चाहते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और आपको फिर से याद दिलवा दूं, जो आखिरी उड़ान बैच है वो 1 सितंबर से शुरू होने वाला है। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं, डो नॉट वेस्ट योर टाइम, अभी जाइए और उस बैच में एनरोल कर लीजिए। तो एक चीज़, since Faizan and you both mentioned one thing which was very, very striking in both was representation and also learning new languages, which brings me back to Avinash. So Avinash, when we talk about representation, we know the foreign services will be representing the country, right? So representation and also in terms of learning languages, the task that is in hand, even at the academy and after academy, because I was talking to you, you explained कि अभी भी आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है. So a little bit information on that side of training also. So as Faizan sir and Ashish sir mentioned, our training starts as a common foundation course in Labasna, and I think the two important values there is, one is building personality, and that is done through various activities. Like I learned horse riding first time there, and you are not scared of learning anything new. Like वो intimidation चली जाती है नई चीज़ पिकअप करने की, जो एक ऑफिसर की important quality है. And my activity was guitar, so something new I picked up there. And also the second most important thing is building friendships and camaraderie, and I think that's what is the whole theme. Like एक दिन और दूसरे दिन, your person who sits every week, it's not the same person. In fact, I don't know for the FC how it was in my foundation course, every week we had a new person who sat beside you, so you got to know a new person. So that way it's also about these bonds and friendships that will help in the service of country, because it's a whole of government approach. So I think these two are important takeaways from myself from the Labasna. And coming to a question on representing, yes, I think when you are representing a country and you have to learn a new language, उसके लिए ये skills important है कि एक well-rounded personality हो. Because if we have this shoddy personality, we should not be scared to meet people of diverse cultures. We should not be prejudicial. And all this, whether it's through village visits or through Himalayan trek, you bond so well that you lose so much of your prejudices, and I think that's just a very good takeaway for me from Labasna. I would like to add one more thing. Like इतने लोग हैं, इतने सर्विसेज से हैं, स्पेशली इन द फाउंडेशन एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन, तो देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. सो इवन इफ आई गो टू अ रिमोट location in the country, so there's always a sense of belonging ki I'm not alone. One of my friends, one of my colleagues, he or she is posted there. Even if you go outside, so you may always reach out to one of your colleagues. So that spirit de corps which we say in academy, and which the director and the entire training module tries to cultivate, ki there should be a spirit de corps and camaraderie among the services, within the services and across the services, which also helps in the growth and development of the country, because we can always reach out in case we come across any problem. So we can always reach out to one of our friends who has dealt with similar kind of problem. And Actually, this Esprit de Corps is one of the mottos of the foundation course, wherein the academy wants different services and different officers to build camaraderie. So they, they place us in situations and in projects wherein that camaraderie can be built, which is good at a personal level, and even more so at a professional level. More so at a just one point to add, like one of the senior retired IAS officers, when they had come to the academy, had mentioned this thing that has stuck with me, like in services, your network is your net worth. If you don't know people across the services, across the states, as we had seen, like for example in COVID,
when we had to do movement of oxygen containers from one state to another, chief secretaries of different states knowing each other on a personal level, that made things easy to get those clearances and all. This is things that are taught in the academy, ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहें, एक दूसरे का सर्विस के बारे में हमको जानकारी है और उसके बेसिस पे हम अपने पर्सनल लेवल पे, जैसे मैम ने कहा, एंड प्रोफेशनल लेवल पे भी ग्रो कर सकें. तो एक पॉइंट जो which Vishal, which every time why is it Vishal coming up? Sorry, he's my team member. 3 to 1. So Avinash, one of the important pointers that you said is academy mein it helps you lose all the prejudices, right? So one thing I wanted to know from all four of you all, that was there anything which was maybe a prejudice in your mind about the UPSC या पूरे एग्जाम के बारे में जो अभी शायद चेंज हो गया है, or you've got you actually has been proved correct, तो something like this जो पहले शायद preparation के time में जो आप सोचते थे और अब जो आप सोचते हो, any such thing which has had like a major change? Honestly, being completely frank, मैं पहले ये सोचता था कि जो भी लबासना में है 100% डिज़र्विंग है सब लोग, एंड जो नहीं है वो नहीं डिज़र्विंग है. बट नाउ आई नो कि काफ़ी सारे लोग अकेडमी से बाहर हैं, दे डिज़र्व टू बी देयर मोर देन मी मे बी, एंड सम आर देयर हु डोंट डिज़र्व एट ऑल टू बी देयर. दैट इज़ वन थिंग, दैट मिसकंसेप्शन हैज़ टू हैव बीन चेंज. बट हाँ, उनको भी इनिशियल एक परसेप्शन होता है कि जब हम मिलते हैं, बिकॉज उनका खुद का एक प्रेजुडाइज होता है, हमारा उनको देखने का एक नज़रिया, एक लेंस होता है. लेकिन हाँ, जब तक आपका फाउंडेशन कोर्स, आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, एवरीवन कम्स आउट टू बी अ बेटर पर्सन, एंड सबके साथ एक अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि अगर शुरू में आप ऐसा कोई प्रेजुडिस लेके भी किसी के आपने बना लिया होता है या लेके अकेडमी में घुसे होते हैं, जब आप निकलते हैं, व्हेन यू लीव द अकेडमी, इट इज़ कम्प्लीटली गॉन. एंड जैसे पहला पॉइंट मैंने कहा था, यू कम्प्लीटली बिकम अ न्यू पर्सन. तो दैट हैपन्स, इन माई केस दैट हैपेंड. I totally agree with Faizan. Like it's a human psychology, it's in our genes from the developmental aspect कि once we are exposed to a new environment, new set of people, so we are a bit skeptical in the beginning, right? So ये अच्छाई है, ये बुराई and all, but finally going back, I realized that every individual is just like a spectrum. There's good, there's bad, so it all depends on you, what you choose to focus on. It's better to focus on the good things. No one is completely bad, no one is completely good, but to grow as an individual and also to remain happy and content mentally and psychologically, because I would suggest that always focus on the good aspect of every individual and try to interact with them in the same way, seeing the goodness in them. So ये हमने देखा कि लबासना की जो ट्रेनिंग है वो आपको कम्प्लीटली बदल देती है. जैसे आपने भी कहा कि जब हम एंट्री लेते हैं तो हम कुछ और होते हैं, जब बाहर निकलते हैं देन वी आर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इंडिविजुअल्स. इसी साथ में ही इसके साथ एक जुड़ा हुआ टॉपिक है कि कहा जाता है कि लबासना इज़ वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट ट्रेनिंग अकेडमी इन द कंट्री. इस पे क्या टिप्पणी है आपकी, कितना स्ट्रिक्ट है लबासना? आई थिंक येस, स्ट्रिक्टनेस के मामले में तो बहुत स्ट्रिक्ट है. फॉर एग्जांपल, हमारा डेली रूटीन स्टार्ट होता है मॉर्निंग पीटी से. सो बाय 6 यू हैव टू बी इन द पीटी ग्राउंड, एंड वो आपका 2 किलोमीटर्स डाउन हिल है, आपको पैदल चल के जाना पड़ता है वहाँ तक. अगर आप 5 मिनट भी लेट होते हैं तो आपका एक मेमो आ जाता है एक्सप्लेनिंग कि आप लेट क्यों हैं, एंड हर मेमो के लिए देन यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन. आपके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं. लेकिन हाँ, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन. अगर आप जो पीटी मास्टर उनको जानते हैं वहाँ पे, तो आपकी लेट पीटी को भी नॉर्मल पीटी मार्क कर देते हैं कभी कभी. तो हाँ, ये रहता है. उसके अलावा क्लासेस हैं, क्लासेस के लिए एंड अटेंडेंस के लिए लबासना इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज द क्लासेस जो हमारे लिए वहाँ लगाई जा रही हैं दैट आर ऑफ टॉप क्वालिटी. एंड समटाइम्स सी आफ्टर सो मच ऑफ 3 to 4 ईयर, जैसे आशीष ने कहा, अविनाश ने कहा, काफ़ी लंबा टाइम पे पढ़ाई करके हम वहाँ जाते हैं, तो वी आर इन अ मूड की एन्जॉय करेंगे, चिल करेंगे. सो उस माइंडसेट के साथ हम सोचते हैं कि यार क्या क्लास करना, सेम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं, सेम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहे हैं, बट एक अलग तरीके से वहाँ पे पढ़ाया जाता है. तो हमको लगता है कि चलो बंक मार देते हैं. बट स्ट्रिक्ट 100% अटेंडेंस का वहाँ रूल रहता है. आप एक भी क्लास को विदाउट एक लेजिटिमेट रीज़न मिस नहीं कर सकते हैं, एंड दैट आई सेड कि वो हमारे एक बेनिफिट के लिए होती है. तो दैट इज़ देयर स्ट्रिक्टनेस के मामले में. अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रेस कोड होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, आप कैंपस में स्लीपर्स में, शॉर्ट्स में, लाइक दैट ऐसे नहीं घूम सकते हैं. मेस में अगर आपको खाना, डिनर, लंच करने जाना, यू हैव टू बी ड्रेस्ड इन योर फॉर्मल अटायर, पैंट, सूट एंड ऑल. जो अगर कोई जाता है तो उसका नाम नोट करके, एंड देन नेक्स्ट डे दे हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन व्हाई यू आर डूइंग दिस. तो शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम लगती थी हमको कि इतना क्यों स्ट्रिक्ट है, मतलब ठीक है इतना ज़रूरी नहीं है. बट लेटर ऑन वी रियलाइज़ कि द डिसिप्लिन इज़ फॉर आवर ओन गुड, बिकॉज शायद अभी नहीं सीखते तो बाद में तो डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं है जो हमको कुछ कह सके, बिकॉज एक IAS ऑफिसर इज़ द टॉप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट.
सारे सबॉर्डिनेट होते हैं, दे कैन नॉट से एनीथिंग टू यू कि सर ऐसा हो रहा है, वट एवर यू वियर एनीथिंग, बट एक डेकोरम वाली जो चीज़ डेवलप होती है वो लबासना का एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें योगदान होता है करने में, तो वो स्ट्रिक्टनेस भी आई थिंक होती है, लेकिन हमारे लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल ही होती है. Nashwati, did you have to write a lot of memos? Fortunately, I didn't have to write a lot of memos. Largely, I think I've attended most of the classes. But before answering this question, actually, the previous question which Fiona asked regarding prejudices about UPSC preparation, I would just like to put my perspective on that. Because even during my preparation days, whenever we watch toppers interviews and everything, somehow this notion creeped into my head that we have to fit into a certain bracket to kind of clear this exam. We have to be like probably the topper sitting across the screen, or like we have to be a certain way. We have to fit into that some kind of an elite bracket for us to clear the exam. And then once I went to the academy, myself clearing it first, and then after going to the academy, meeting so many people, everyone is different. Everyone is different. No two people are similar, and everyone has very different things to offer. So that's when it really hit me that you don't have to fit into any kind of bracket. You just have to be your authentic self, and that's what matters. So you really don't have to fit into any kind of notion or anything. You being yourself, you being your own person, a different person from the other, that is what is important. So I just wanted to put that across. Thank you. And about your memo? Oh, thankfully, I think I've got only like 1 or 2 memos which somehow I could, manage dealing with it. So, as he mentioned, training in academy is definitely strict, but it's not strict in the sense they want to punish you. Like it's not like it's not any source of it's not any source of it's not like a strict enforcement that is being done. Rather, it's for you to understand that you have to be if it's because you're late, it's because you have to be punctual, and punctuality is a trait that we expect of an officer. So your thinking is molded that way. So it's not the strictness of a school and strictness in the academy is entirely different actually. Understood. And I like to add, it also depends on the course director. The seniors definitely are different course directors. In my foundation course, we had one of the course directors who could be considered to be the most strictest version of course directors possible. So I had a very different experience, but it did impact me in a sense that there is reason to why they are strict. It's not that they are strict, because the kind of people who are coming to teach us also are very senior officials in the government. So coming late, coming unshaven, all these has an impact of the kind of values they hold of the incoming batch, the kind of officers they perceive that they are going to run the country in the future. Therefore, it's the messaging and it's individually also how you change. And I think I came out of it as a very changed person as to how I perceive time, as to how I value other people's time. And I think these are values that you have to teach an officer, and that is why the academy is for, not for like these skills of various other things are just add-ons. I think punctuality, learning to obey hierarchy, and these are the values that you take out of it. So you mentioned that your experience was very different compared to your seniors. Any one experience or incident you want to share? Yeah. I think, I don't know, I think the whole set of it, like for example, village visit or even India Day, our experience was very much micromanaged. Like we had to geotag ourselves every morning and show we are here in this place, next we are here in this place. I think they did not have such an experience. So I think that was a very different experience where even minute, and that shows the capability of the officer. While there I might be complaining, but after coming out of it, I only have admiration, because that is something I learned from her, and that's something I admire about her. Great. One thing I believe that a good officer is a very disciplined officer, I would say, because once in field, like Faizan mentioned, that there is no one to guide you. You are on your own. You have to be very disciplined. How you wake up in the morning, what you do in the morning, when you go to the office, how you conduct yourself in front of your subordinates, how you conduct yourself in official dealings, how you conduct yourself when it comes to getting the work done. So when you are not self-disciplined, you lack self-discipline, that obviously those other things of your professional aspects clearly take a toll,
once you are in the district on your own, doing things on your own. So there's a logic, like ma'am mentioned, that there's a logic behind everything they make you do. So I believe that being a very disciplined officer, because personal speaking from the personal experience, like there will be no one to guide you, but there are multitudes of things which you need to learn while doing your job. So for instance, if I want to learn a new language, and then if I'm not disciplined, if I do not have any routine, if I do not know how to manage my time, in what slot I need to put that learning that learning time, so how can I become a good officer? So it is always directed towards making and grooming you as a good officer. So we have discussed a lot about Labasna. इसमें मैं अविनाश सर से पूछना चाहूँगा कि IFS ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू लबासना, वो बल्कि कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद उनको दिल्ली लाया जाता है. सर उस ट्रेनिंग के बारे में हमारे एस्पिरेंट्स को बताइए कि हाउ इज़ दैट डिफरेंट फ्रॉम द लबासना ट्रेनिंग एंड उसमें क्या क्या सिखाया जाता है. आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़. So actually after the 100 days, we also go on our Bharat Darshan, which is much shorter than the IAS ones. It's for 2 weeks. बट अच्छा होता है ना, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कहाँ जाना है. So we get to decide where we want to go, how we want to go, what That's we not want to go. possible in our So case. so you have the choice. Yes, so we are given this much time. We can give a list of these are the places we want to visit. Okay. So we make our own list, and generally it's approved. So we go there, and then our training is split. Our attachments happen separately. Like our army attachment, some of the batch is sent to the Pakistan border, Northern Command. Some are sent to the Eastern Command. We get to see at the border, right at the border, how the Jawans are living at the barracks. We have to live in the barracks. It's quite harsh conditions. I got to go at the LAC with the Chinese border. Then we have the Navy attachment. We go to ASUS in Mumbai. We went inside a submarine. We went inside a destroyer, frigate. So you see how the defense of this country is done. Then we have a startup attachment in Bangalore. We meet venture capitalists, companies such as Infosys, Microsoft. What are their demands from us? We see that. And then we have a mission attachment, which is they take us to any of the missions in abroad embassies. I went to Kathmandu, Nepal, so I got to see Indo-Nepal relations, how it works at a very close proximity, talk to the ambassador and all. So most of the training happens outside Delhi. So Delhi is a base for the 6 months, but I think we are mostly traveling. And when we are in Delhi, it's mostly lecture, very specialized on international relations and diplomacy. That's how and then even in Delhi we have modules, hospitality module, media module. So this is how our course is designed. Okay, that's great. तो आपने भारत दर्शन की बात की, तो हम लोग थोड़ा लबासना वाले भारत दर्शन के बारे में बात कर लेते हैं. आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दैट. तो सर बताइए भारत दर्शन का अपने एक्सपीरियंस के बारे में, क्या कुछ सीखा आपने? भारत दर्शन में आई थिंक सबसे ज़्यादा सीखने की जो चीज़ मिलती है वो है कि एकेडमी आपको छोड़ देता है. देयर इज़ नो फैकल्टी अकोमोडेटिंग यू. हमारे ही ग्रुप में से 20 ऑड पीपल के ग्रुप में से एक ट्रेजरर होता है, एक लीडर, एक को लीडर एंड एक लाइजन ऑफिसर होता है. जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, ऑल्दो दोज पीपल हैव नॉलेज दैट दिस ग्रुप ऑफ पीपल विल बी कमिंग टू विजिट अस, बट हमें को उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है कि सर वी आर हेयर, वी नीड अकोमोडेशन, वेयर इज़ आवर बस. देन वी हैव, हमको एक फिक्स्ड अमाउंट दे के भेजा जाता है जो हमको स्पेंड करना होता है पूरे ऑलमोस्ट 40-45 डेज़ की जर्नी पे. तो रेशनिंग कैसे करना है उसका, बिकॉज वो अगर आपने एक्सटेंड कर दिया, आप ऐसा कुछ करने लगे जो ज़्यादा खर्च हो गया, तो लबासना वोंट रिफंड यू दैट, वो फिर आपकी जेब से जाता है. तो वी लर्न अबाउट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, कि कम बजट में कैसे गुजारा करना है. देन एक बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है उसमें, बिकॉज 40 डेज़ आप 20 लोग एक साथ रहते हैं. आप यूनानिमस होकर डिसीजंस लेते हैं कि ये करना है, ये अटैचमेंट स्किप करना है, यहाँ जाना है. वी लाइक ऑनेस्टली कभी कभी लोग नहीं भी जाते, लाइक वी बंक ऑल्सो, तो डिसाइड करते हैं कौन कब बंक करेगा, कौन कब जाएगा. सो दीज थिंग्स bring all of us together. We learn how to carry ourselves as an officers also, because वो फाउंडेशन के बाद फाउंडेशन में फॉर एग्जांपल हम विलेज विजिट के लिए जाते हैं. सो इन अ विलेज वी गो एज IAS ऑफिसर, दे ट्रीट यू एज IAS ऑफिसर्स लाइक सम कलेक्टर्स एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. उसके बाद देन जब हम भारत दर्शन में वी गो आउटसाइड, वी आर ट्रीटेड एज ऑफिसर्स. तो वी हैव टू कैरी आवरसेल्व्स लाइक दैट, सो दैट अकेडमी की इमेज, एक सर्विस की इमेज आपको मेंटेन करनी होती है. बिकॉज लोगों की आंखों में एक बहुत बड़ा एक चीज़ होता है कि IAS ऑफिसर कोई आया है यहाँ पे. सो वो एक चीज़ होती है. उसके अलावा इट्स कम्प्लीटली फन टाइम.
40 days के लिए आपको अलग अलग जगह, लाइक वी वेंट टू लक्षद्वीप एंड देन फॉर आर आर्मी अटैचमेंट ऑल्सो वी ऑल्सो गो, सो वी वेंट टू ईस्टर्न कमांड, देन वी वेंट टू अरुणाचल, आसम, and one memorable experience, Ashish was also there in my group, so we were stranded in Lakshadweep. हमको लक्षद्वीप लेके गए, मानसून का सीज़न था अनफॉर्चुनेटली, वहाँ पे द सीज वर वेरी रफ एंड हैवी, एंड उसके बाद हमको केरला में अटैचमेंट था, एंड वी वर स्टक इन द आइलैंड इन अगाती फॉर लाइक 2 days and 3 days. There were no jetties, no ferries to take us back to Kerala. तो वन बेस्ट थिंग, ऑल्दो हमारा वो अटैचमेंट बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि लक्षद्वीप का जो एक आई थिंक एक ही कोई आइलैंड है कमर्शलाइज्ड, हाँ बंदराम आइलैंड है, वो सबसे ज़्यादा फ़न है, हम वहाँ नहीं जा पाए। तो उसको कवर अप करने के लिए जो एक अच्छी चीज़ हुई वो ये हुई कि हमको लक्षद्वीप से अगाती से कावाराती जो एयर स्ट्रिप है, कावाराती से अगाती एयर स्ट्रिप पे चॉपर में एयरलिफ्ट करके लेके आया गया। सो ऑल्दो पहले हमको लग रहा था कि जो भारत दर्शन का टाइम है ख़राब हुआ, लेकिन वो जो ज़िंदगी में पहली बार, और पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब हेलीकॉप्टर राइड मिलेगा, तो दैट बिकेम वन ऑफ द मेमोरेबल थिंग्स। तो येस, भारत दर्शन आई थिंक इज़ वन थिंग दैट पूरा एक IAS फ्रेटर्निटी होती है ट्रेनिंग में, दे लुक फॉरवर्ड टू कि वो कब होगा। एंड FC के बाद जो सबसे, हिमालयन ट्रैक के बाद सबसे मेमोरेबल जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है वो भारत दर्शन होता है। आई थिंक अदर्स विल ऑल्सो अग्री विद मी। मैम ने तो बताया था कि इनके भारत दर्शन इनको गोवा ले जाया गया था, तो मैम प्लीज़ गोवा में आपने क्या सीखा? So, unlike other batches where Bharat Darshan actually happens, I think after FC, before phase 1. Yes. In my batch, because of COVID, Bharat Darshan happened in between your district training. So I was training in Palakkad in Kerala, then we were called back to Delhi, and then that's when our batch went in for Bharat Darshan. And unlike other batches, we didn't get to choose our groups, we didn't get to choose our routes. I've heard that there's a precedent of choosing group and routes. Yeah, but because our Bharat Darshan happened like this, we didn't have both those privileges. So we were, a random bunch of 20 people stuck together for next 40-45 days. But like, I'm extremely thankful for that experience, because some of my most beautiful friendships and everything came out of those 40 days with these people. So it is a very memorable experience. And coming to Sir's question on Goa, so I think I regret mentioning that we took a detour from our actual route and stayed back in Goa for one day. So there was no academic attachment there. So most of my fellow batchmates were North Indians, and some of them were seeing the sea for the first time. So Goa was largely like a sea experience, water sports experience, and definitely we were in Goa, so we did party. Especially after the entire phase of COVID, staying at home, I think Yes, सबको yes, निकलना yes. था बाहर. And I think during those 6 months we spent in our respective districts before Bharat Darshan, since COVID was at its peak, most of us were very actively working, with respect to COVID. Actively working, and I think that was very hectic also, because when it's COVID, you don't have like 9 to 5 office time. You have to work 24/7. For example, in Kerala, we had different war rooms. There was a COVID war room, there was an oxygen war room, and most of us trainees were put, in charge of most of these rooms. So we were very actively working. We were working really hard, off time, on time. So after that, having an experience like Bharat Darshan was really good. Plus, it was also the one other advantage we had was that in 6 months of our district training, we all saw how the administration of our respective districts work. So we could, the comparison with respect to the administration of another state, we could make out the differences, and we could draw the parallels much more clearly because of that. So at least among our batch, we have had this discussion that probably they should make Bharat Darshan somewhere in between district training itself rather than before, because we got a much more informed takeaways. We got much more informed takeaways from our Bharat. So I'll just want to come back to this question, क्योंकि मुझे आशुतोष जी से मैं पहले भी मिली हूँ. So I know कि आपको day 2 में ही you had to join, start working, you were given responsibilities. तो थोड़ा सा अब, क्योंकि ट्रेनिंग से आप सीधा गए हो अपने कैडर में, तो अब थोड़ा सा if you can explain a little bit more, day 2 क्या हुआ आपका, कैसे हुआ once you took up the charge? For my district training. Yes. So my whole batch, we joined districts when the second wave of COVID was at its peak. So every state was suffering, and Kerala's story was also similar.
So at that point of time, so I joined today, and my collector was Mrinmay Madam. She's 2013 batch, currently doing her deputation in Delhi. So Madam kind of put me into in the middle of the whole thing, because she wanted me to experience everything. So on the second day, she told me I was trained in Palakkad. So Palakkad is one of the districts in Kerala which has a very large number of migrant laborers, because we have very strong industrial base there. So Madam told me that she wants to make a care center exclusively for migrant laborers, and she told this to me on the second day of my joining, and she said, you make it. I was like, ma'am, I just joined yesterday, I don't know what to do, so you tell me what to do and then I'll do. So she told me, okay, I'll connect you with the district labor officer, figure it out. So at that point of time I was very overwhelmed, but then, and she told me she wants it done in like a week. So then we I had zero experience and zero knowledge, and then the district labor officer came in, we worked as a team, and somehow it came out in a week. So we created this center exclusively for migrant laborers. And so when I called ma'am and mentioned that, okay ma'am, it's ready, I think you can come and inaugurate, she said, no, no inauguration is going to happen, let it start working. But ma'am mentioned that this is your first baby in the district. So, and I hope there are many more babies to come. So yeah, thanks to her, many more babies did come. But yeah, this is what happened on the second day of me joining the district. But overall it was a very good learning experience, because we really didn't have the time and privilege to sit back, see things, understand, and then make decisions. We just had to be on ground and just take decisions. And that really, I think my whole batch is a little grateful to COVID, even though COVID is a very unfortunate incident. In a way, we are a little grateful to COVID, because we just had to hit the ground running. We didn't have time to sit back and learn. Talking about babies, Faizan, आपकी वो first baby कौन सा था? What was your first, the charge that you had to take? About the first task that was at hand? लगा first baby. इंडिया में प्री मैरिज बेबी थोड़ा टैबू है ना. बट यस, एनीवे, मेरा फर्स्ट चार्ज आई रिमेंबर वाज ऑफ तहसीलदार. सो इन डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का पार्ट होता है अलग अलग, जो आपको सबऑर्डिनेट्स रहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में. तहसीलदार हो गया, SDM हो गया. सो इसका चार्ज मेरा पहला तहसीलदार था. उसके बाद फिर मैंने BDO का चार्ज लिया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का. एंड थर्ड चार्ज जो मेरा हुआ वो SDM का चार्ज था. तो आई थिंक SDM का जो चार्ज था वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. पहला चार्ज था तहसीलदार का, वो इट विल ऑलवेज बी स्पेशल, बिकॉज पहली बार जब आप गवर्नमेंट पेपर्स पे साइन करते हो एंड आपको एक पावर वाला फीलिंग मिलता है कि नहीं, नाउ यू कैन डू थिंग्स, यू कैन चेंज थिंग्स ऑन द ग्राउंड. तो यस, वो एक मेमोरेबल चीज़ था. बट यस, सो फर्स्ट बेबी एज यू आर सेइंग वाज तहसीलदार ओनली. Okay. And any incident जो आपको एक reminder, it's like an incident जो you will always remember while you were doing this charge? तहसीलदार में, yes, I remember in तहसीलदार. So mostly तहसीलदार has to do with land disputes, क्योंकि तहसीलदार के पास पावर होता है कि किसी का लैंड का ट्रांजेक्शन करना है, किसी को सेल किया, किसी ने किसी के साथ फ्रॉड किया. So there were a lot of such cases in my tehsil when I was doing this charge, and fortunately I had the power and the privilege कि जो मेरे पास एप्लीकेंट्स आते थे पेटी इश्यूज़ के लिए, मोस्टली मैंने देखा कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था कि आपका ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या मैनी ऑफ द टाइम जो लोअर रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स ही चेक नहीं करते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेक नहीं करते ये देखने के लिए कि किसका ज़मीन किसके पास है, इसको गलत पहुंचा तो कैसे पहुंच गया. इस केस में जो मेरा असिस्टेंट था, हमारे वहाँ CC बोलते हैं, कैंप क्लर्क, ही इज़ फ्लुएंट इन तेलुगु, तो ही वॉज अ वेरी बिग बेनिफिट लग्जरी फॉर मी. आई रिमेंबर एटलीस्ट 3 केसेस वर देयर जहाँ पे सिंस 3 to 4 years दे वर गोइंग हेयर राउंड एंड राउंड, चक्कर काट के, जो बोलते हैं ना सरकारी दफ्तरों में चप्पल घिस जाती है लेकिन काम नहीं हो पाता है. तो वो मेरे को आज भी हमेशा याद रहेगा कि वो 3 केसेस में पर्टिकुलरली एक सिंपल रिकॉर्ड चेक करवा के वो केस इतना इजीली किसी के लिए सॉल्व किया जा सकता है, वो मेरे को एक मालूम पड़ा. तो इससे मुझे ये हुआ कि गवर्नमेंट इज़ एफिशिएंट, लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जो आप बोलते हैं नॉन फैशनेबल, या फिर इतना ज़्यादा इसको करना किसी के लिए एक अच्छी बात नहीं है, समझा नहीं जाता. वो काम अगर कोई घुस के उसमें करे वो चीज़ें, तो द व्हील्स ऑफ द मशीनरी और द गवर्नमेंट मशीनरी स्टार्ट्स टर्निंग.
तो आई थिंक ये एक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट टेक अवे रहेगा मेरे तहसीलदार अटैचमेंट का। अंडरस्टूड। सो मतलब किसी भी काम को मत छोटा या नॉट नो, इम्पोर्टेंट ना यस, समझकर। दैट इज़ वन थिंग जो आपने अच्छी पकड़ी इसमें, यही है कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो मेरे साथ नीचे काम कर रहे थे, बोला सर आप ये काम क्यों कर रहे हो, ये आपका काम नहीं है। मैंने ये बोला ये आपका भी काम है, मेरा भी काम है, सबका काम है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं बिकॉज वी आर पब्लिक सर्वेंट, वी आर सिविल सर्वेंट। इफ़ यू आर नॉट सर्विंग द सिविलिटी, नॉट सर्विंग द पब्लिक, यू आर नॉट fulfilling the mandate that UPSC has given it by selecting and putting in those positions. तो यस, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। हमें कभी तहसीलदार बनने का मौका नहीं मिलेगा, कभी शायद BDO बनने का भी मौका ना मिले। तो ये इंडिपेंडेंट चार्जेस में हमको सीखने को मिलता है कि कैसे आप इन चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं, कहाँ पे चीज़ें अटकती हैं। एंड जब हम SDM या फिर ADM और मे बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं तो कैसे हमको ये मालूम रहता है कि कौन कहाँ मक्कारी कर रहा है, कोई फाइल पेंडिंग है, किसी का काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे वो चीज़ अटकी हुई होगी। वो एक बहुत बढ़िया एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में मिलती है थ्रू दीज अटैचमेंट। एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आपके केस में वो सवाल वैलिड है, सिंस यू कम फ्रॉम अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट और आपको जो कैडर एलोकेट हो गया है वो एक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वो वाला डेफिनेटली बैरियर तो थोड़ा बहुत होता ही है। तो उसको आप टैकल कैसे करते हैं, उसको आप मतलब ओवरकम कैसे करते हैं? हाँ, ऑनेस्टली ह्यूमन टेंडेंसी होती है कोई भी नई चीज़ उसको सीखना जो उसके खुद की मर्ज़ी के अगेंस्ट है, हमेशा से एक प्रॉब्लम आती है। तो एंड एक ये टेंडेंसी होती है कि जो जिस कैडर का है, जो जिस होम स्टेट का, उसको वो मिले तो बेटर है। मोस्टली जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि नॉर्थ इंडियन कैडर मिल जाए, हिंदी स्पीकिंग कैडर मिल जाए, तो आपको एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा नहीं सीखनी पड़ेगी। बट मेरे को हमेशा लैंग्वेजेस ने फैसिनेट किया है। इवन बिफोर आई वॉज स्टार्टेड टू लर्न तेलुगू, सेट मैक्स पे तेलुगु मूवीज़ तो आती रहती थी हमेशा, आज भी आती हैं। तो उससे देख के थोड़ा मेरे को हमेशा एक वो रहा था कि यार क्या है, कभी मैंने तेलुगु में नहीं देखा था, हमेशा हिंदी डब्ड वाला ही देखा था। अब मैं वो उनको तेलुगु में देखता हूँ सबटाइटल्स के साथ ताकि सीख सकूँ कि कितना है। लेकिन ऐसे मेरे को एक अच्छी चीज़ जो लगी कि पीपल आर वेरी वेलकमिंग। अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, अगर आप टूटी फूटी लैंग्वेज भी बोलने का कोशिश करते हैं ना, अगर आप 2 वर्ड भी सही बोल देते हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड वो आपको सिखाते हैं। उसकी वजह से इन द लास्ट 6 to 7 months जब से मैं डिस्ट्रिक्ट में हूँ, आई थिंक 0 से एटलीस्ट 30% तो मेरा तेलुगु हुआ है। आई कैन रीड, आई कैन राइट एंड आई कैन अंडरस्टैंड सामने वाला क्या बोल रहा है। एंड तेलुगु इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। जो एक इटालियन ट्रैवलर कोई आए थे मिडिल एजेस में, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, लेकिन उन्होंने तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट भी बोला है। So it's a beautiful language. I'm still very learning it and enjoying the process, and hopefully maybe in the next 1.5 years I'll be fluent in that. तो शायद तब वो तेलुगु मूवीज़ डबिंग के साथ नहीं देखना पड़ेगा एंड एक अच्छे तरीके से उनको एंजॉय कर पाऊँगा। फिर शायद आप सब अपने फैमिली मेम्बर्स को सबटाइटल्स बता सकोगे। हाँ। और आपके लिए कैसा रहा था योर फर्स्ट चार्ज? Actually, like ma'am mentioned, so going on the field, taking an independent charge, then learning becomes more engaging and interesting. So once I came from the state ATI training, because that is mandatory, you have to know the local laws, revenue laws, and you have to clear it before you take any independent charge. So after coming from the state ATI, so just when I came to the district, जैसे ही मैं डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा, so my DM sir said कि कुछ नहीं, go, ये तहसील है, सो दे आर 4 तहसील्स और सब डिविजन्स इन माई डिस्ट्रिक्ट। माई DM सर सेड कि जाओ इस तहसील में जाओ एंड टेक द चार्ज ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सो डायरेक्टली आई वॉज गिवन द चार्ज ऑफ SDM एंड फ्रेंकली स्पीकिंग जब day 1 था, सो देयर वर सो मेनी थॉट्स गोइंग ऑन इन माई माइंड, because like after DM the SDM is the next level of the buffer in the district, and heading one of the tehsils without any prior experience, without any prior knowledge, और फिर डायरेक्टली फ्रॉम द एकेडमिक्स, इफ़ यू से कि एकेडमी से आए हो, फिर स्टेट एकेडमी आए हो, सो दैट वाज अ बिट थोड़ा सा डर तो लग रहा था। बट देन अगेन देयर वर सर्टेन बेसिक थिंग्स लाइक यू हैव टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, और फिर चीज़ों को सही से समझ के करना है एंड देन यू हैव टू प्लान इट आउट। सो ग्रेजुअली मतलब इट टुक मी 1.5 months, इवन मोर देन दैट, लाइक फैजान सेड कि कुछ लोग मक्कारी कर देते हैं। सो इनिशियली लाइक आपका बैकग्राउंड कुछ होता नहीं है, इफ आई सेड फ्रैंकली, इन डीलिंग विद पीपल, ठीक है, यू आर जस्ट एन एस्पिरेंट, देन यू गो इनटू द एकेडमी एंड देन you go into the district पटल अटैचमेंट्स। सो 1.5-2 महीने 3 महीने तो लगते हैं कि लोगों को समझने में। लाइक देयर वेर मैनी केसेस
ठीक है. Initially you put in so much of effort in every complaint which comes to you, but gradually you realize that not all complaints are genuine. There are some social divisions, there are some divisions जहाँ पे आपको तो you need to categorize कि कहाँ पे आपको ज़्यादा effort देना है, कहाँ पे आपको कम effort देना है, which requires your more time and less time. So gradually 2-3 महीने में समझ में आया. फिर gradually धीरे धीरे जो है आई गॉट इन टू दैट मोड कि अब चीज़ें जो हैं आसान हो गई हैं चीज़ें कि किसको क्या बोलना है, किससे कैसे काम लेना है, किस काम के लिए कितना डेडलाइन होना चाहिए, कौन से काम में जो है किस तरीके से होगा. फॉर इंस्टेंस यस्टरडे लाइक एक कट था मेरे NH में, तो दैट इज़ अ ब्लैकआउट जोन बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ड्यू टू दैट कट और NH पे हाईवे पे अगर कट है तो पीपल क्रॉस दैट कट, सो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है. सो देयर वर 28 एक्सीडेंट्स लास्ट ईयर. सो मैंने बोला कि कट बंद करवा देते हैं. देन व्हाट हैपेंड दैट लोकल कस्बा, तो पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग कि गलत कर रहे हो क्योंकि हमें इजी एक्सेस चाहिए एंड ऑल, ऑल्दो देयर वर एक्सेस फ्रॉम अदर साइड्स ऑल्सो, अंडरपास बने रहते हैं एंड ऑल. सो व्हाट आई सेड कि ठीक है अभी हट जाओ, रात में जाना, लाइक 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, व्हेन नो वन इज़ देयर, लोग विरोध नहीं करेंगे एंड देन दे कैन नॉट गेट अदर सपोर्ट एज वेल. तो 2-3 बजे जाके जो है कट बंद करके अपना और परमानेंट कंस्ट्रक्शन करके आ दो. दैट वे यू विल हैव टू फेस लेस रेसिस्टेंस. एंड देन वन अनदर थिंग क्या है कि there is always a danger of getting into that routine वाला जोन विच मैम also mentioned कि इतना ओवरवेलमिंग होता है ना. देयर आर वर्क्स फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव, बहुत तरीके के काम होते हैं. हेल्थ से रिलेटेड आपको डील करना है, एजुकेशन से रिलेटेड डील करना है. सो एक रूटीन वाला जोन हो जाता है कि मैं अपना काम करूँगा, दूसरे से मतलब कि इतना ही, मतलब आपका ही काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अपना ही काम में बिजी हो जाते हैं. बट लाइक फैज़ान सेड कि एक अच्छा जो ऑफिसर है, देन अपार्ट फ्रॉम डूइंग हिज ओन वर्क ही विल लाइक पोक हिज नोज, मतलब in a positive way I would say in other departments as well. For example education में I am trying hopefully I succeed कि जैसे they are around 12,000 के अराउंड illiterate हैं अभी भी मेरे तहसील में, and that is a unfortunate reality जो कि नहीं होना चाहिए. So I am gradually starting a baby project की धीरे धीरे साक्षरता वाला वो शुरू कर दें. एंड देन जब द डे आई ज्वाइन तो आई सॉ इन फ्रंट ऑफ माई तहसील की कचरा फेंका हुआ है, एंड देन ODF इज़ गोइंग ऑन. तो फिर द थिंग इज़ कि देयर वर मैनी पीपल बिफोर मी, बट दैट डेंजर ऑफ गेटिंग इनटू द रूटीन जो है वो दैट इज़ अ रियलिटी, हार्श रियलिटी. तो फिर वो कचरा साफ करना एंड देन एक प्रॉपर स्पेस बनना एंड देन गेटिंग दैट डेवलप्ड इनटू द पार्किंग. इट इज़ ए स्मॉल स्पेस. सो वी मतलब कि फिर उसका टेंडर करना, ऑल्दो पहला टेंडर था, तहसील बनने में काफ़ी टाइम हुआ, बट पहला टेंडर था तो शुरू में 60,000 के अराउंड का अमाउंट में ये बिडिंग हुआ. बट वंस मतलब कि बीच बीच में मैं इंस्पेक्शन में जाता हूँ कि कितनी पर्ची कटी आज, तो डेली जो है 2,000-3,000 की पर्ची जो है कट जाती है. एंड देन 3-4 पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दैट स्मॉल पार्किंग. तो फिर नेक्स्ट टाइम 1.5-2 लाख में मतलब कि वी विल ट्राई टू बिड इट इन मच हायर अमाउंट. बट इट सेल्फ गिव्स सेटिस्फैक्शन कि 3-4 लोगों की नौकरी यू मतलब हाँ इनडायरेक्टली क्रिएटेड. तो इससे ये मज़ा आता है कि रूटीन में नहीं जानना है. दैट इज़ द मेजर लर्निंग विच आई टू, हाँ मतलब रूटीन में नहीं जानना है. यू जस्ट हैव टू ट्राई कि और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं. हाँ तो दैट इज in a positive way. हाँ poking nose in a positive way I would say. चलिए, so talking about the three of you, Avinash, I know you still have a charge to take up. So if you can again, tell a little bit to all our aspirants also that if someone has selected IFS and someone ends up becoming an IFS officer, then what is the process after Labas? Now you told us a little bit about abhi bhi aapki training chalti hai, you've already visited Nepal, you've gone there, you've seen the relations and all happening. So abhi from now what's the next thing that you have to do, and सबसे पहला charge आपके लिए for an IFS officer क्या होता है? I think as ma'am said, she had a very concrete baby, a kind of a health center. But I'm still undergoing training in Delhi, but we have already we had one deputation during training. So we were made liaison officers during G20 summit, foreign ministers meeting that happened, and Raisina happened. And MA के लिए ये problem था कि in 1 month we had the SCO summit, G20 summit, and Raisina. Just like you had like 40 countries, foreign ministers coming down to Delhi. So
we'd just been 6 months in service. They told me that you are the liaison officer to the foreign minister of Indonesia. And I didn't know anything. I had to recce the route, receive the foreign minister there, and make sure her meetings are well planned, her meeting with REM is well planned. And can you believe, and that's the kind of responsibility UPSC gives. It's just been 6 months into the service. And I think for me, the really hair-raising event was, there was this call on to the Prime Minister by the foreign ministers. There were 40 foreign ministers in Delhi Taj, and you are the other person in the room. There are like 40 foreign ministers, there is Prime Minister, and some of our batchmates who were liaison officers were in that room. And really being in that meeting felt really great, like something, we are discussing something big, and it is a privilege that we get to be here, and how do we use this for the country's benefit. So this was kind of my learning experience as to what the Foreign Service offers. But coming to your second question as to what is the first charge we get is, now immediately after training in Delhi, we are sent for a language training, which is 1 year. Most of our work is to learn the language, learn the culture, learn the society well, because you cannot deal or develop a relationship if you do not know the society, how they behave. After that, we are given the post of second secretary. Like when I went to Nepal, I saw the second secretary commerce was dealing with the entire bandwidth of commercial relationship between Nepal, including export and import. What are the developmental projects? Like we were building 1,000 crore police academy in Nepal, the Nepal Police Academy we were building, fast track roads we were building. So ensuring these projects are implemented, and it's a strategic job. So we have our adversaries who is also competing for influence in that country, and how do you counter that influence? So it's not very concrete, but it is a very hectic job as to maintain that balance. And in my mission attachment, I got exposure to the nature of job that it is. तो सर आई थिंक अभी इतनी सारी बातें जब हमारी विद रोल्स एंड द चार्जेस एंड द बेबीज जो हम कर रहे हैं, आई एम श्योर योर बेबीज विच आर योर स्टूडेंट्स, वो सब अभी यही बोल रहे होंगे कि सर प्रिपरेशन पे भी थोड़ा सा आ जाए. तो सर टेक अस थ्रू प्रिपरेशन. राइट, तो प्रीलिम्स और मेंस की बात हम लोग बाद में करेंगे. पहले हम लोग थोड़ी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं. हमारे पैनल में आज सभी के ऑप्शनल्स अलग अलग हैं. कोई एंथ्रोपोलॉजी से है, कोई फिज़िक्स से है, मैम का ऑप्शनल मेडिकल साइंसेज है, अविनाश सर का ऑप्शनल लॉ रह चुका है. सो हम लोग उसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं कि एस्पिरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऑप्शनल को चूज़ करते समय. स्कोरिंग पे ध्यान रखना चाहिए, इंटरेस्ट पे ध्यान रखना चाहिए, और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, प्लीज़ हमें बताइए थोड़ा. आई थिंक 3 या 4 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ऑप्शनल डिसाइड करते समय. लाइक मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, जो अवेलेबल है यूपीएससी में एज एन ऑप्शनल, एंड बट स्टिल मैंने डिस्पाइट दैट एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चूज़ किया. जब मैंने ऑप्शनल चूज़ किया मुझे पता भी नहीं था एंथ्रोपोलॉजी वर्ड क्या होता है. स्टिल आई वेंट फॉर दैट. तो ऑप्शनल चूज़ करने से पहले ये पता होना चाहिए क्या चूज़ नहीं करना है. मुझे ये पता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई वुड नेवर चूज एज ऑप्शनल, बिकॉज आई कॉल माई सेल्फ एज एक्सीडेंटल इंजीनियर. होपफुली मेरे ऊपर भी कोई मूवी बनाए शायद कभी. बट एनी वे, बिकॉज इंजीनियरिंग मैं अपने मन से कभी करना नहीं चाहता था. बिलोंगिंग टू कोटा यू हैव 2 चॉइसेस, या तो डॉक्टर आप बन जाओ या इंजीनियर आप बन जाओ. आई चॉज द समथिंग विच वॉज ईजियर, तो आई बिकेम एन इंजीनियर. 4 साल घसीट के थोड़ा पास कर लिया. And I always knew that my interest lied in some humanities subject. लेकिन एक मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है ना कि क्या बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, इंजीनियर बनोगे तो कितना कमाओगे, डॉक्टर बनोगे तो ये है बस सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर. तो वो अनफॉर्चुनेटली आज भी ट्रू है, बट स्टिल कंडीशन इज़ इम्प्रूविंग. mentality of Indian parents, they are being more adventurous and allowing their wards to pursue humanities also as career options. तो मैंने डिसाइड कर लिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं लेना है, बिकॉज उसके लिए बहुत मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ता. तो ये चीज़ पहले ही मालूम होनी चाहिए. दूसरी चीज़, आपको मार्केट में होते हैं कुछ ऑप्शनल्स जो बोला जाता है कॉमन ऑप्शनल्स है, जो एक ट्रेंडिंग चलते हैं. लाइक आज के टाइम में पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जोग्राफी, हिस्ट्री एंड ऑल, ये ऐसे ऑप्शनल्स हैं जो वो प्रेफर करते हैं जिनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इन ऑप्शनल से अलग था. मोस्टली इंजीनियर्स होते हैं. तीसरा, आपको ये चूज़ करना होता है कि आप देखिए किस में इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है. यू गो थ्रू सिलेबस, यू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर ऑफ दीज ऑप्शनल्स एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट कि इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा आपको. लाइक एंथ्रोपोलॉजी, मुझे जब पता चला कि यू हैव टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट सोसाइटीज़, कल्चर, कैसे कल्चर इवॉल्व हुआ, वाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर एंड दीज थिंग्स. तो एक स्पार्क मेरे अंदर जागा कि येस, दिस इज़ क्यूरियोसिटी, ये एक अच्छा, मेरे को मज़ा आएगा पढ़ने में.
आई वेंट थ्रू सोशोलॉजी ऑल्सो, आई वेंट थ्रू हिस्ट्री ऑल्सो, लेकिन जो मेरे को एक इंटरेस्ट इसमें लगा वो मुझे कहीं नहीं लगा. उसके बाद एक अगला फैक्टर आता है कि ईज़ ऑफ स्टडी मटेरियल. लाइक फॉर एग्जांपल आशीष का ऑप्शनल फिज़िक्स है. फिज़िक्स का मे भी इतनी ईजीली लोगों को स्टडी मटेरियल अच्छा क्वालिटी का अवेलेबल ना हो. ही बीइंग फ्रॉम एन IIT उसके लिए ईजी था वो परस्यू करना. मैम का मेडिकल साइंस था तो उसका ऑप्शनली अवेलेबल है अच्छा, लॉ का भी अच्छा अवेलेबल है, इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी अवेलेबल है. लेकिन आपको इंटरेस्ट देखना है ज़्यादा इससे कि किस में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज़ सेकेंडरी. लाइक फॉर एग्जांपल आजकल बोला जाता है कि हिस्ट्री इज़ नॉट अ गुड स्कोरिंग ऑप्शनल, बट वन ऑफ माई फ्रेंड ही इज़ ऑल्सो इन फॉरेन सर्विस इन माई बैचमैन itself. He graduated with engineering from IIT Kanpur, still scored 280-290 marks in history, which is exceptionally high in history. Only because he had very much interest in that subject. तो आप इंटरेस्ट को लीजिए, आप सिलेबस देखिए कितना शॉर्ट सिलेबस है, आप टाइमली कवर कर सकते हो क्या, एंड स्कोरिंग है या नहीं है वो आप लास्ट में देखिए. ये आई थिंक 3 या 4 चीज़ें जिसके बेसिस पे आपको ऑप्शनल डिसाइड करना चाहिए, एंड देन स्टिक विद इट. एक अटैम्प्ट के बाद कभी ऑप्शनल चेंज नहीं करे. काफ़ी लोग होते हैं लाइक आफ्टर 1 अटैम्प्ट यार जम नहीं रहा मेरे को. मे बी अगर आपने एफर्ट नहीं डाला है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे. इफ़ यू हैव पुट 100% एफर्ट स्टिल 2 या 3 अटैम्प्ट के बाद भी अगर आपको लग रहा है देन मे बी यू कैन गो फॉर एन डिफरेंट ऑप्शनल. बट इनिशियली आपको डिसाइड करते टाइम ये 3 या 4 फैक्टर आई वुड से कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. So from an accidental engineer, were you an accidental doctor? No. It was a carefully crafted, planned decision of my parents. So it was not accidental. Now coming to like my optional medical science. See, initially it was not a very informed decision, I would say, because I didn't look into the details and particulars of whatever criteria he just mentioned. So मैंने सोचा कि चलो MBBS हो गया है तो medical science option ले लेते. That's it. And then once I started giving the exam seriously, like what happened is in 2017 and 2018 I couldn't clear prelims. So my entire energy and focus and everything went into just preparing for prelims and clearing prelims. Because of which again the time I should have probably given into researching a lot more about my optional didn't happen. And then 19 May finally when I cleared prelims, for me it was like I cleared this exam because finally prelims clear ho chuka hai. And then when you started preparing for your mains, so even though before prelims I did look into one paper. We have 2 papers, right? So paper 1, even though I did look into the nitty-gritties of paper 1, the time between prelims and mains was a time when I realized that, oh my god, my optional subject is so vast. It's even more vast than the GS papers. Now how do I handle both GS and medical science together? And by then I think it was almost 2-3 years since I had passed out of college. I mean, finished my house surgency. So like your touch with medicine has also gone away, even though I did work for a short duration. So that period, between prelims and mains, when I had to balance both GS preparation and medical together, that I think was the most difficult phase of my whole life, carrying both of them together. So I would say that looking back, am I happy with taking medical science as my optional? Yes, because it did help me, reach the place I wanted to. It did take me to my destination, but at the same time, back then while preparing, I did think, like I should have probably gone for a less vast optional, a less difficult optional, syllabus wise a less smaller optional and everything. But then again, I'm not really sure if that is a good criteria, because medical science was difficult, but it helped me reach where I was. I don't know, had I taken some other smaller syllabus, would I still reached the place I wanted to. So I really don't know, whether I would have changed my decision had I got a chance to relive it again. Yet I would say that I was still in a safer category because I came from a place where I learned a subject for 6 years. Like, it was not new, I was familiar. I wouldn't go all blank on a question. I would know at least something about it. So in that sense, I was safe, but I wish I had researched more into, the scoring pattern, the experience of people who had taken medical science before and everything. And right now, like before ending my answer, I would just like to say one thing, that sometimes I think about people like doctors itself, including seniors in my cadre, who took medical science as one optional when there were 2 optionals. So who wrote GS, another one optional, and medical science optional. I am extremely in awe of them. I have to say this on record. I'm extremely in awe of them. बट एक
बड़ी ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो हमें यहाँ पे अश्वती मैम से मिली है वो ये है कि अगर किसी भी कारणवश आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो उसके बाद आपका प्रोसेस ये होना चाहिए कि जो भी आपका ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय है तो उस पर पूरा ज़ोर लगाइए, उस पर पूरी डेडिकेशन से उसको पढ़िए, सो दैट जिस भी साल में जाकर के आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है आपको एटलीस्ट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, राइट मैम? सर प्लीज़ अपने ऑप्शनल। मेरा आंसर सिमिलर होगा अश्वती मैम से। लॉ इज़ ऑल्सो वेरी वास्ट ऑप्शनल, very low rate of returns. One of the big regrets I have of taking law optional, but naturally 5 years पढ़ने के बाद it really does not make sense for anyone to pick any other book and study, and that was my plan that I'll take this optional. So I had to put less effort probably to prepare it, but much more effort than someone who had taken anthropology or PSR would put. And the highest marks in law is 280, highest 280, 285, which 300 plus 300 is natural in so many other subjects. But I think I'm here, so it's not impossible. But definitely, if someone is, I think who should take this optional is if in your college, like I studied from National Law School, it is one of the best law schools in India. So I had very good grounding. अगर आपने कॉलेज में ऐसे सब्जेक्ट को कवर कर चुके हो at depth, then you should go with the optional. If not, you're starting with zero. Just because you are a lawyer, you should not take this optional. I think you can explore other subjects which you have interest in. But the driving factor, I think, should be interest. I think none of us would disagree on that. If you do not have interest, just because you see some maths is scoring 340, I would have picked up maths, would not have made sense. Because people with maths have gotten 210 also. So you should see that range. So from the best law school to best engineering school, आप क्या बताओगे? IIT, did choosing physics as an optional was, IIT one of the major reasons why you did that? सर इसमें एक और चीज़ बताइएगा आप, आपने मैकेनिकल क्यों नहीं चूज़ किया? Okay, so for any aspirant who is just about to begin his journey, choosing an optional is very difficult, very very difficult. So I always say कि एक लड़का है या एक लड़की है एंड चूजिंग अ लाइफ पार्टनर इफ ही इज ऑलरेडी नॉट कमिटेड इन लव मैरिज अरेंज मैरिज में, तो इट्स लाइक चूजिंग द पार्टनर, लाइफ पार्टनर. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ, है ना. सो कमिंग बैक टू द ऑप्शनल, आई वेंट थ्रू लाइक 6 ऑप्शनल्स बिफोर अराइविंग एट द फिजिक्स कि चलो फिजिक्स ही है जो मतलब मुझे बचा सकता है. एंड देन on top of that I would suggest my fellow aspirants कि अगर छोटा सा मतलब 40-50 पेज में if you can get a gist of the optional, whichever optional interests you या फिर आपको लेने का इच्छा है. For instance sociology, I started with sociology और sociology का एक short notes, I went through the short notes जिसमें paper 1 paper 2 थोड़े बहुत कवर हो जाते हैं ना, like period of 20-30 days में, मतलब I went through that. फिर then I realized कि humanities में उतना मज़ा नहीं आ रहा है. Then when I started my preparation in 2018, anthropology was in vogue. Like people were scoring in north of 350, like 362, 374. So anthropology was in vogue. So मुझे लगा कि anthropology से बहुत अच्छा नंबर लाके I will crack the exam in the first attempt. So I went through some of the materials of anthropology थोड़ा बहुत, but फिर वही है कि आधा जाते जाते I started losing that interest, या फिर वो मतलब if something doesn't interest you तो mental fatigue आना ज़्यादा है. Like you get more and more mental fatigue कि मज़ा ही नहीं आ रहा है and all. और especially when you are not from that background. For example, फैजान chose anthropology because उसका interest है नई सोसाइटी को पढ़ने में, how cultures developed है, how languages developed, तो उसको मज़ा आ रहा था, तो उसको mental fatigue कम आता होगा. मुझे काफ़ी ज़्यादा mental fatigue आ रहा था. And then coming back to your question, so I was from a technical background, from a technical college. So yes, I explored mathematics also, paper 1. फिर मुझे लगा कि ओके इट इज़ इंटरेस्टिंग, लेकिन इंटरेस्ट इज़ समथिंग सेकेंडली कि संभल पाएगा कि नहीं संभल पाएगा. सो आई रियलाइज कि उतना नहीं मैनेजेबल है. सेम विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्योरली न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल कैन बी फ्रेम इन मैनी वेज, और बहुत बार मतलब कि चांसेस है कि इधर यू नो इट और यू डोंट. देन आई अराइव्ड एट फिजिक्स फर्स्टली क्योंकि गाइडेंस है मोर और लेस. मैनी ऑफ माई सीनियर्स क्लियर्ड विद फिजिक्स ऑप्शनल, और 2-3 लोग मेरे काफ़ी क्लोज थे, तो दे डिसाइडेड टू गाइड मी. ठीक है, दे शेयर्ड विद मी देयर नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फिर छोटे छोटे गाइडेंस, एंड देन वी डिस्कस टुगेदर. दूसरा ये कि इट इज़ अ कॉमन ऑप्शनल फॉर फॉरेस्ट सर्विस एंड द यूपीएससी सिविल सर्विसेज. तो मैं दोनों का एग्ज़ाम देता था. तो प्रीलिम्स में मेरा आई वाज ऑलवेज टारगेटिंग कि 20-30 नंबर ज़्यादा ही रहे, बिकॉज इट इज़ नेचुरल. लाइक
इट इज़ सच एन अनसर्टेन एग्जामिनेशन कि एक जॉब सिक्योरिटी, एवरीवन लुक्स फॉर अ जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। तो आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर दैट जॉब सिक्योरिटी, और फॉरेस्ट सर्विस आई बिलीव कि ज़्यादा वो है, प्रेडिक्टेबल है कंपेयर टू द सिविल सर्विसेज, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इवन आफ्टर गिविंग इंटरव्यूज़, ठीक है। तो एक दूसरा ये था अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड देन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट विच आई फर्मली स्टैंड विथ, कि अगर आपको पता है कि आंसर कैसे लिखना है, कैसे पढ़ाई करना है एंड कैसे आपको अपने नोट्स को एनरिच करना है, देन देयर इज़ ऑलवेज सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे 266 है एंड उसी की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू कॉल भी आया, क्योंकि मेरे जीएस में 820-730 का ही अटैम्प्ट हुआ था। तो आई वाज लाइक थॉरली क्रश्ड इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट। तो फिर भी जैसे थे 751 751 कट ऑफ था, मेरे 760 नंबर थे, तो मार्जिन पे आई गॉट इंटरव्यू कॉल। तो दैट एक्सपोजर तो मुझे मिला इंटरव्यू का, दैट वाज ड्यू टू ऑप्शनल। देन आई रियलाइज़ कि इसमें 20 नंबर बढ़ाना है, इसमें 20 नंबर बढ़ाना है, तो आई टारगेटेड कि 21-22 नंबर मुझे ऑप्शनल बढ़ाना है वैल्यू एडिशन करके। सो फॉर्चुनेटली आई मैनेज टू डू दैट। आई गॉट अराउंड 287 इन माई सेकेंड अटेम्प्ट, जिसमें मैं सेलेक्ट भी हो गया था, ठीक है। तो फिजिक्स के साथ वो कंफर्ट था, दैट काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी था। एक आपका टर्फ था जो आप मैम बता रही थी कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हाँ वो है आपका, यू आर फाइटिंग इन योर ओन टर्फ। फॉर एग्जांपल वो मैकेनिक्स आता है, क्वांटम फिजिक्स आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है, एवरीथिंग वी आर एक्सपोज टू इन आवर इंजीनियरिंग स्टडीज़। तो उसके वजह से थोड़ा सा तो कंफर्ट था एंड आई एम ग्लैड एंड हैप्पी दैट इट पेड रियली वेल। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकलता है कि बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आपको अपना ऑप्शनल चूज़ करना है तो इंटरेस्ट को देखिए, उसके बाद बाकी सारी बातें सेकेंडरी हैं। आपका बैकग्राउंड, फैज़ान सर ने कहा बैकग्राउंड अलग भी हो सकता है, ऑप्शनल डिफरेंट भी हो सकता है। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न मैटर करता है। ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको कि हम लोग प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ भी, कि अगर आपके ऑप्शनल की प्रोफेशनल गाइडेंस अवेलेबल है तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको उस ऑप्शनल में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही कोई बोलता है कि ये ले लो बिकॉज इसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपके भी मार्क्स अच्छे आएंगे। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि एक जनरल मिसकंसेप्शन आई वुड से कि सोशलॉजी का सिलेबस छोटा है, एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस छोटा है, बहुत ज़्यादा मटेरियल एंड ऑल, ठीक है सब कुछ है, बट जितना ज़्यादा मटेरियल है, जितना ज़्यादा कंटेंट है ऑनलाइन, दैट इज़ एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो कंपटीशन भी उसमें ज़्यादा है। तो यू शुड नॉट थिंक कि 4 पेज पढ़ के या 3-4 नोट्स पढ़ के जो है आपका सोशलॉजी अच्छा होगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही पड़ेगा एंड दैट इज़ द डिमांड विच आई सी इन लास्ट 3-4 ईयर्स की हर ऑप्शनल, नो मैटर विच एवर ऑप्शनल्स यू चूज, इतना ज़्यादा लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ गया है ड्यू टू ओपन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द मटेरियल्स, गाइडेंस, मेंटरशिप, कि आपको अपने तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट लाना पड़ेगा फॉर दैट एक्स्ट्रा 1 मार्क्स और 2 मार्क्स इन एवरी आंसर। तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज रेफर करने ही पड़ेंगे, स्टैंडर्ड वेबसाइट रेफर करना ही पड़ेगा, अपने नोट्स को जो है औरों से थोड़ा सा बेहतर करना ही पड़ेगा, खुद से जो है एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा। तो आई थिंक कि इसकी वजह से क्या हुआ है, बट आई फील कि ऑलमोस्ट हर ऑप्शनल जो है ना एक धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट यू गिव। लाइक वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे आशीष ने बोला एंड यूपीएससी का भी ये लास्ट कुछ साल में ये हो गया है कि दे आर नॉर्मलाइजिंग एवरी ऑप्शनल, बिकॉज एज अविनाश ने बोला कि मैथ्स में आप 500 में से 500 भी ला सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट किसी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में या फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस में 500 आउट ऑफ 500 लाना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको एक अनड्यू एडवांटेज होता है, लाइक जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग हो गई, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में आप कितना भी अच्छा लिख लो आंसर, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर सब्जेक्टिविटी। मेरे को पसंद नहीं आया, जो एग्जामिनर है उसको आपका आंसर पसंद नहीं आया, तो यूपीएससी ने क्या करना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू सम फार्मूला दैट दे ओनली नो, दे स्टार्टेड नॉर्मलाइजिंग द स्कोर ऑफ ऑप्शनल्स। लाइक अगर आपका फॉर एग्जांपल लॉ में मैक्सिमम 260 जा रहा है, लेकिन आपके फॉर एग्जांपल मैथ्स में 380 400 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो बाय सम फार्मूला दे विल इक्वेट इट, तो वो मार्क्स को रिड्यूस करके लॉ के मार्क्स बढ़ा देंगे ताकि एक इक्विलिब्रियम जैसा आशीष ने कहा वो मेंटेन हो जाए। तो वो एक चीज़ है। तो अब ऐसा कुछ नहीं रहा है कि ये ऑप्शनल ही स्कोरिंग है, दूसरा ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं हो सकता है, तो वो इंटरेस्ट वाली बात आती है। दूसरा जो एक मैंने नोटिस किया है, जो भी एस्पायरेंट्स मुझसे भी कभी कुछ गाइडेंस पूछते हैं, तो ये है कि भेड़ चाल में दिस लेक्चर ऑप्शनल, कि मेरे फ्रेंड ने भी सोशल ले रखा है, उसने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, या फिर टॉपर के नोट्स अवेलेबल हैं, वो मेहनत करने का जो एक कंपोनेंट है ना वो मिसिंग है।
सबको पकाया नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे सबके नोट्स अवेलेबल हैं ईजिली, तो वो नोट्स बना के वो सोचते हैं बस यही नोट्स हम पढ़ लेते हैं तो हमको ईजिली क्रैक हो जाएगा। बट जैसे आशीष ने बोला, अविनाश ने बोला, यूपीएससी इज़ इंक्रीजिंग द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ ऑप्शनल्स। फॉर एग्जांपल आप अगर आज से 5 साल पहले किसी भी सब्जेक्ट के ऑप्शनल का पेपर उठा के देखेंगे और 2022 का देखेंगे, ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क दिखाई देगा। आई कैन स्पीक फॉर एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज मैंने देखा है देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट हैज़ बीन देयर। तो जब तक आप बैकग्राउंड वर्क नहीं करेंगे थोड़ा मेहनत करके कि मुझे क्या ऑप्शनल लेना है, एंड देन आप ये थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे खुद के 4, 5, 6, 7 बुक्स पढ़ के नोट्स बना के उनको रिवाइज़ करके, तब तक आप 250, 270, 280 प्लस स्कोर नहीं कर सकते। तो सिर्फ मटेरियल के पीछे भागना या फिर ये ऑप्शनल ज़्यादा मार्केट में चल रहा है आज के टाइम में, सिंस यूपीएससी बिकमिंग वेरी कम्पिटिटिव, इट विल टेक यू नोवेयर। सो खुद जब तक मेहनत नहीं करेंगे, ग्राउंड वर्क अपना प्रिपेयर नहीं करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट सक्सेस, स्पेशली इन ऑप्शनल्स। सो दोस्तों, आज हमने एक और एपिसोड को कंक्लूड किया पर्सपेक्टिव सीरीज़ का। काफ़ी सारी नई नई बातें जानी, ये भी जाना कि आईएएस अफसर की लाइफ कितनी कठिन होती है और कितनी चुनौतियों से भरी होती है। बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि जो हमने बात करी फेलियर्स की, वो शायद इस पूरे टॉक की मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एनलाइटनिंग डिस्कशन थी, जिसमें कि हमने देखा कि हमारे पास ऐसा पैनल था जिसमें एक अविनाश सर को अगर हम छोड़ दें तो सभी ने अपने अटेम्प्ट्स में कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस किया है और अपनी ही गलतियों को इम्प्रूव करते हुए, इस टफ़ एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए आईएएस की ही सर्विस को प्राप्त किया है। सो ये आपको भी सीख यहीं से लेनी है कि किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से आप मोटिवेटेड रह सकते हैं, किस तरीके से आपको नर्वसनेस और एंग्जाइटी जैसे नेगेटिव चीज़ों से बचना है। सो इसी मुद्दे पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू Thank you. वंस अगेन, Thank you. Thank ऑल you. ऑफ यू। Thank you.